X5 ডিজিটেল আৰু ষ্টুডিঅ'ত মৰ্নিনিতা কটকী এই মুহূৰ্তত আমি এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ দিল্লীত গৰজি উঠিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ 7 নেতা ৰকিবুল হুছেইন গৌৰৱ গগৈ ভূপেন বৰাৰ বিস্ফোৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লৈ কি কৈছে নেতাকেইজনে আমি এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকক ফুল প্লেটৰ সহায়ত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীত গৰজি উঠিল কংগ্ৰেছৰ 7 নেতা আৰু ৰকিবুল হুছেইন গৌৰৱ গগৈ ভূপেন বৰাৰ বিস্ফোৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লৈ আৰু ভয়ত পেপুৱা লাগি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বুলি মন্তব্য কৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে যিকোনো মুহূৰ্ততে আসন হেৰুৱাব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লৈ বাৰম্বাৰ আক্ৰমণৰ পিছতো কিয় অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই বিজেপি চৰকাৰে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ লগত থকা আৰক্ষীৰ বন্দুককাৰী আক্ৰমণ কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য ৰকিবুল হুছেইনক কৰা আক্ৰমণক লৈও হৰব হৈছে নেতাকেইজন আৰু আৰক্ষীৰ খাকি পোছাকৰ ওপৰতো আক্ৰমণ কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিয় ব্যৱস্থা ল'ব পৰা নাই বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে অসমত চলি থকা জংঘল ৰাজক লৈ কি ক'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যোৱা 3টা বছৰত অসমত হাজাৰ হাজাৰ স্কুল বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কিন্তু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে যতে ততে মদৰ দোকান খোলাৰ অনুমতি দিছে চৰকাৰে বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে প্ৰতি মাহে 2000 কোটি টকাৰ ঋণ লয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে আৰু দিল্লীত সংবাদমেল যোগে বিস্ফোৰণ ভূপেন বৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল গৌৰৱ গগৈ আৰু দেশবাসীয়ে জানে বিজেপি মিছা আৰু ফাকিৰ পট্টা বুলি ফাকিৰ পাৰ্টি বিজেপিৰ ফাকিৰ কাৰখানাৰ সৰ্দাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু আঞ্চলিক মেনেজাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা এক ডাঙৰ খবৰ কিয়নো দিল্লীত গৈ বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়াইছে কংগ্ৰেছৰ 7 নেতাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে গৌৰৱ গগৈকে ধৰি ৰকিবুল হুছেইন ভূপেন বৰা দেশবাসীয়ে জানে বিজেপি মিছা আৰু ফাকিৰ পাৰ্টি বিজেপিৰ ফাকিৰ কাৰখানাৰ সৰ্দাৰ হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু আঞ্চলিক মেনেজাৰ হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে আমাৰ লগত মন্তব্য আছে আমি মন্তব্য আগবঢ়াম এটা এটাকৈ कि जिस प्रकार से अब हिमंत बिश्व शर्मा पुलिस प्रशासन पर निर्भर कोयला से आए हुए पैसों पर निर्भर झूठ और अफवाह पर निर्भर उनकी स्थिति कितनी कमजोर है हमें पता चल गया है डरे हुए हैं उनको उनके आंखों में देखिए उनके आंखों में खौफ दिखेगा उनके आंखों में अस्थिरता दिखेगी आपको 2 कारण से एक क्योंकि बीजेपी के संगठन में चाहे वो केंद्रीय हो चाहे राज्य में हो जो बदलाव आ रहे हैं उससे साफ साफ संकेत है कि शायद प्रधानमंत्री को हिमंत बिश्व शर्मा जी के ईमानदारी पर सवाल है उनके नेतृत्व पर सवाल है तो अपने कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक वो जा सकते और दूसरा उनके पास उनके मन में यह खौफ है कि 12 महीने बाद असम में निर्वाचन होने वाला है विपक्ष में बैठने का अवसर उनको मिलेगा और जब वो विपक्ष में बैठेंगे जब जनता उनसे सवाल उठाएगी जिन सवालों का उजागर आज जितेंद्र सिंह जी ने किया उन सवालों का जवाब उनके पास नहीं है उन्होंने एक मीडिया में कहा कि रकीबुल हुसैन जी पर जो आक्रमण हुआ वो उस आक्रमण को लेकर रकीबुल हुसैन जी जब कुछ चंद जिलों में जाएंगे तब उनको और पुलिस फोर्स भेजा जाएगा उनकी सुरक्षा के लिए लेकिन जब हिमंत बिश्व शर्मा जी विपक्ष में बैठेंगे जनता का इतना आक्रोश जनता में इतनी नाराजगी कि असम में हर जिले में जाने के लिए उनको पुलिस की सुरक्षा की जरूरत होगी तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी कहें कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कहा लेकिन वास्तविक में एक ऐसा वॉशिंग मशीन की स्थापना की जिस वॉशिंग मशीन का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर हिमंत बिश्व शर्मा जी हैं
क्योंकि उन पे लगा हमारा अभी जो सिचुएशन जो असम में है, आप लोग सबको मालूम है कैसे हमारा ऊपर अटैक हुआ। मेरा ऊपर भी अटैक हुआ, आज तक किसी को अरेस्ट नहीं किया, वीडियो है। 2 दिन पहले हमारा MP रकीबुल हुसैन जी, उसका ऊपर अटैक हुआ। वो भी उसका साथ जो PSO था, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, कार्बाइन था हाथ में, कार्बाइन हाथ में था, कार्बाइन छीन के दोनों सिक्योरिटी को अटैक किया। पूरा वीडियो वायरल है। ठीक है, कांग्रेस MP है, उसको अटैक किया, आप किसी को अरेस्ट नहीं करेगा। असम पुलिस का खाकी पोशाक का ऊपर गुंडा ने जूता से लात मारा, पुलिस का खाकी ड्रेस का ऊपर गुंडा ने लात मारा जूता का ऊपर। CM खुद होम मिनिस्टर है, अभी तो किसी को अरेस्ट नहीं किया। तो ये जो जंगल राज बनाने का कोशिश करे, ये मोदी जी का सहमति है कि नहीं, ये जो असम का जनता जानना चाहता है। और आप लोग सुन के आश्चर्य होगा, 1600 इस गवर्नमेंट स्कूल पिछले 3 साल में असम में बंद कर दिया। यूपी का जनता, यूपी में जितना पॉपुलेशन है इसका 100 गुना असम से ज्यादा है। लेकिन पूरा इंडिया में सबसे ज्यादा वाइन शॉप कहां है? असम में है। असम में वो भी वाइन शॉप है 1708 और बियर बार है 863। सबसे ज्यादा जो वाइन शॉप खुलने का जो बात है, क्यों? पहले बोला था डबल इंडियन सरकार, असम का जनता को डबल बेनिफिट मिलेगा। वो भी 1,56,000 करोड़ लोन असम गवर्नमेंट ने लिया है। जब तरुण गोगोई जी असम का CM था, 10,000 करोड़ हमने जब लोन लिया था, तो हिमंत बिश्व शर्मा ने खुद असेंबली में बोला था कि ये देशद्रोही है, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। और अभी पर मंथ 2,000 करोड़ लोन हिमंत बिश्व शर्मा ले रहा है। और खर्चा कहां गया है? पर 20 करोड़ उसका हेलीकॉप्टर में, 120 करोड़ एडवर्टाइजमेंट में। तो इसीलिए हमने मोदी जी को ये पूछना चाहता हूं, जो आपने जो बोला था कि गुवाहाटी में जो आर्टिफिशियल फ्लड, पिछले बार आर्टिफिशियल फ्लड में भी कितना लोगों को मृत्यु हुआ, आप लोग को मालूम है। लेकिन आर्टिफिशियल फ्लड, ये बीजेपी का नारा था जो 100 दिन का अंदर गुवाहाटी का आर्टिफिशियल फ्लड का प्रॉब्लम और ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम खत्म कर देगा। कि जिस प्रकार से अब हिमंत बिश्व शर्मा पुलिस प्रशासन पर निर्भर, कोयला से आए हुए पैसों पर निर्भर, झूठ और अफवाह पर निर्भर, उनकी स्थिति कितनी कमजोर है हमें पता चल गया है। डरे हुए हैं, उनको उनके आंखों में देखिए, उनके आंखों में खौफ दिखेगा, उनके आंखों में अस्थिरता दिखेगी आपको। 2 कारण से, एक, क्योंकि बीजेपी के संगठन में, चाहे वो केंद्रीय हो चाहे राज्य में हो, जो बदलाव आ रहे हैं उससे साफ साफ संकेत है कि शायद प्रधानमंत्री को हिमंत बिश्व शर्मा जी के ईमानदारी पर सवाल है, उनके नेतृत्व पर सवाल है। तो अपने कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक वो जा सकते। और दूसरा उनके पास, उनके मन में यह खौफ है कि 12 महीने बाद असम में निर्वाचन होने वाला है, विपक्ष में बैठने का अवसर उनको मिलेगा। और जब वो विपक्ष में बैठेंगे, जब जनता उनसे सवाल उठाएगी, जिन सवालों का उजागर आज जितेंद्र सिंह जी ने किया, उन सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। उन्होंने एक मीडिया में कहा कि रकीबुल हुसैन जी पर जो आक्रमण हुआ, वो उस आक्रमण को लेकर रकीबुल हुसैन जी जब कुछ चंद जिलों में जाएंगे तब उनको और पुलिस फोर्स भेजा जाएगा उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन जब हिमंत बिश्व शर्मा जी विपक्ष में बैठेंगे, जनता का इतना आक्रोश, जनता में इतनी नाराजगी कि असम में हर जिले में जाने के लिए उनको पुलिस की सुरक्षा की जरूरत होगी। तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी कहें कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कहा, लेकिन वास्तविक में एक ऐसा वॉशिंग मशीन की स्थापना की जिस वॉशिंग मशीन का
सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर हिमंत बिश्व शर्मा जी हैं, क्योंकि उन पे लगा। हमारा अभी जो सिचुएशन जो असम में है, आप लोग सबको मालूम है कैसे हमारा ऊपर अटैक हुआ, मेरा ऊपर भी अटैक हुआ, आज तक किसी को अरेस्ट नहीं किया, वीडियो है। 2 दिन पहले हमारा MP रकीबुल हुसैन जी, उसका ऊपर अटैक हुआ, वो भी उसका साथ जो PSO था, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, कार्बाइन था हाथ में, कार्बाइन हाथ में था, कार्बाइन छीन के दोनों सिक्योरिटी को अटैक किया, पूरा वीडियो वायरल है। ठीक है, कांग्रेस MP है, उसको अटैक किया, आप किसी को अरेस्ट नहीं करेगा। आसाम पुलिस का खाकी पोशाक का ऊपर गुंडा ने जूता से लात मारा, पुलिस का खाकी ड्रेस का ऊपर गुंडा ने लात मारा जूता का ऊपर। CM खुद होम मिनिस्टर है, अभी तो किसी को अरेस्ट नहीं किया। तो ये जो जंगल राज बनाने का कोशिश करे, ये मोदी जी का सहमति है कि नहीं, ये जो आसाम का जनता जानना चाहता है। और आप लोग सुन के आश्चर्य होगा, 1600 इस गवर्नमेंट स्कूल पिछले 3 साल में आसाम में बंद कर दिया। यूपी का जनता, यूपी में जितना पॉपुलेशन है इसका 100 गुना आसाम से ज्यादा है, लेकिन पूरा इंडिया में सबसे ज्यादा वाइन शॉप कहां है? आसाम में है। आसाम में वो भी वाइन शॉप है 1708 और बियर बार है 863। सबसे ज्यादा जो वाइन शॉप खुलने का जो बात है, क्यों? पहले बोला था डबल इंडियन सरकार, आसाम का जनता को डबल बेनिफिट मिलेगा। वो भी 1,56,000 करोड़ लोन आसाम गवर्नमेंट ने लिया है। जब तरुण गोगोई जी आसाम का CM था, 10,000 करोड़ हमने जब लोन लिया था, तो हिमंत बिश्व शर्मा ने खुद असेंबली में बोला था कि ये देशद्रोही है, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। और अभी पर मंथ 2,000 करोड़ लोन हिमंत बिश्व शर्मा ले रहा है। और खर्चा कहां गया है? पर 20 करोड़ उसका हेलीकॉप्टर में, 120 करोड़ एडवर्टाइजमेंट में। तो इसलिए हमने मोदी जी को ये पूछना चाहता हूं, आपने जो बोला था कि गुवाहाटी में जो आर्टिफिशियल फ्लड, पिछले बार आर्टिफिशियल फ्लड में भी कितना लोगों को मृत्यु हुआ, आप लोग को मालूम है। लेकिन आर्टिफिशियल फ्लड, ये बीजेपी का नारा था जो 100 दिन का अंदर गुवाहाटी का आर्टिफिशियल फ्लड का प्रॉब्लम और ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम खत्म कर देगा। कि जिस प्रकार से अब हिमंत बिश्व शर्मा पुलिस प्रशासन पर निर्भर, कोयला से आए हुए पैसों पर निर्भर,